The dream of a self-reliant India was a dream envisioned by our founding fathers. Mahatma Gandhi and other modern leaders envisioned a country in which the village economy is strengthened and empowered. It should have been the foundation for growth. While the cities have grown rapidly in the last 75 years of independence, the villages have not yet seen the light of full-fledged development. According to UNDP and Planning Commission Government of India reports, the level of poverty amongst the scheduled tribes is deeper and more entrenched due to the alienation of these communities from their rights and entitlements. As a result, there are pertinent development changes: illiteracy, poverty and hunger, absence of infrastructure, unemployment and malnutrition. While it may appear that there are abundant schemes and programs for the vulnerable section of communities in the rural domain, on the ground, the reality is different. Village members say that they have little idea about what schemes or programs they have access to. This is due to lack of extension services, inaccessible remote residential areas such as forests and hills, and people's general lack of interest. Gram Nirman, as the name suggests, is building communities and building villages. We believe that people are the primary stakeholders in the process of change. And this program is built on the contours of security on different dimensions, development and resilience. Caritas India is closely working with the tribal communities in Chhattisgarh and Jharkhand to make them understand their capacities and help them, rather animate them to build on top of these resources. This program helped the rural tribal communities in their livelihood promotion program and in terms of accessing government entitlements, both social and economic. The outreach of Gram Nirman has chartered incredible journeys of self-reliance. Some of these inspiring stories are from the most interior parts of Chhattisgarh and Jharkhand. These are far-reaching villages with minimal infrastructure and low development index. Yet, the communities show unfathomable grit and determination to innovate, establish their well-being and change the narrative of their destiny. तब हम इनके शालिग्राम मुंडा जी कहलाएं कि ठीक है, तो इनके यहाँ दिक्कत का है। तो हम कहले भाई पहला मुद्दा हमके दिक्कत है कि हम इनके जेंट्स यानी बेटा छुआ और बेटी छुआ भी एक एक डोभा में नहा धोवात रही। तो इमन कहना है कि कोई ऐसा जगह है का जो चयनित किया जाए और में तेने पूरे गांव वाला मिल के और साफ सुथरा श्रमदान से करल जाए ताकि पुरुष और महिला के जगह नहान धोवान हुआ से के अलग अलग कर सकेला। और हमिन भी जानकारी दिली तो कहना ठीक है, हम हमर बठे से थोड़ा सा हम मदद करब, तोहनी भी थोड़ा सा मदद करा और मिल के हमिन के आगे बढ़ा। तो मैंने कहना कि श्रमदान से काम कर सकाला। तो हाँ, हमिन सबको निर्णय कर लिए गाँव वाला मिल के कि भाई श्रमदान से जब हम के सुविधा न खे तो इतना बढ़िया सुविधा जब हम इनके कोई आके बताते तो कि हम इनके लगाव करके करना चाहिए। हमारे समूह के नाम है जल क्रांति मछुआरा सहकारी समिति और हम पूरा 32 जन, इनमें कुछ महिला है, 100% महिला ज़्यादा है, पुरुष वर्ग कम है। कि मतलब एक ग्रुप बना के वो मछली पकड़ेगा, मछली पकड़ने के बाद वही लोग बेचेंगे, बेचने के बाद जो मार्केट से आएगा अपनी रोजी निकाल के और जो
मैं करके उसको मतलब ये सचिव पास मेरे पास जमा करते हैं और उसी पैसा को मैं बैंक में लेके पासबुक में जमा करवा देता हूँ। पहले हमारी समिति गठन होने के पहले इस बांध को रेंगा कठरा वाले कमा रहे थे। और केरी टार्स वाले इंडिया भाई लोग हमको सजेस्ट दी कि आपके बांध है गांव में, सुने हैं, तो आप उसमें मछली पालन करो। तो मत्स्य विभाग वाले साहब अपन को बताए कि भाई तुम्हारे गांव के बांध को फिर टेंडर होने वाला है। पुराने का टेंडर ख़त्म हो गया, एक और दो पैसा जोड़ के चंदा करके मतलब उसमें सहभागिता सभी लोग बनाए। आज उसी का परिणाम है जो हमें मतलब बांध हम उसमें काम कर रहे हैं, मछली बो रहे हैं और फ़ायदा भी हो रहा है। तो फ़ायदा तो हमारी पासबुक बता रही है। The members of the Jal Kranti Machwara Sahakari Samiti are seeing an increase of rupees 10,000 per month in their earnings and creating a supportive income source. This can have compounding effects as more people are getting inspired to create alternative livelihood sources. This emphasizes the ultimate ethos of Gram Nirman. सब कोई आके यहाँ खिचड़ी खाते थे और मिट्टी में काम करते थे, बांध बनाते थे। एक दिन 2 दिन में कंप्लीट कर देते थे। तो कितने बार ऐसा किया पहले, देखिए बना था वो भी टूट गया। उसके बाद में हम लोग फिर मिट्टी वर्क नहीं किए। तो फिर सोचे कि अब पक्का वर्क है, जब पक्का वर्क नहीं होगा तो टिकाऊ नहीं होगा। बार बार हम लोग बोले कि हम लोग को मिट्टी वर्क नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग स्वयं कर लेते मिट्टी वर्क, हम लोग को पक्का वर्क चाहिए। नेता मंत्री विधायक एमएलए से नहीं होता है तो हम लोग लास्ट में अपना करना ही पड़ेगा। हम लोग फिर अपना शुरू करेंगे, ग्राम संगठन के माध्यम से अपना आंदोलन करेंगे हम लोग। सर से ना हम लोग 3 महीना बैठक किए थे विशेष का रहा था। इलेक्शन एकदम सामने था ना, हम लोग ग्राम सभा में थे, हम लोग किसी पार्टी विशेष से हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे। हाईलाइटेड होने लगा, टीवी में आने लगा, आजकल पब्लिक है उसमें चलने लगा, फेसबुक में चलने लगा। तो उनको पता चला तो वीडियो को भेजे। वीडियो सर आए, आने के बाद में फिर वो डीसी सर से बात किए। फिर हम लोग को 5-6 आदमी को बोले कि चलिएगा साथ में, हम कागज पत्र वहाँ जमा कर देंगे। सब उसी पर जल्दी काम भी शुरू होने लगा। फिर इंजीनियर लोग आने लगे नापने के लिए जल्दी। इतना हम लोग जान गए ना, पूरा ग्राम सभा अगर एक मत रहने से ना कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, हम लोग लड़ सकते हैं और आराम से जीत सकते हैं। The Renchi village in Latehar shows that by understanding the constitutional right and putting a united exerted effort, they can be the heroes of their own. Ground workers like Celestian had been supporting the struggle and helping in necessary paperwork. Just like him, Salikhram Munda, in this distant village in Ranchi, is helping a group of differently abled persons to come forward and lead in important spaces. दीवाल है, एक दीवाल जो खड़ा किया जाता है, तो हम लोग एक दिव्यांग है तो दिव्यांग हम लोग टूटे हुए हैं। जैसे कहीं भी दीवार जोड़ा जाता है तो टूटा हुआ ईंट का भी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ता है। तो वैसा ही हम लोग सोचे कि वो ईंट के टुकड़ा हैं। हम लोग संगठन में रहेंगे तो एकजुट में बैठेंगे, सब कोई तो अपना सुख दुख का चर्चा करेंगे आपस में। जब तक हम लोग समाज में मुख्यधारा में नहीं जुड़ेंगे तो समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग समूह के माध्यम से हम लोग सबका जिसका सर्टिफिकेट नहीं बना है उस सबका सर्टिफिकेट बनवा दे रहे हैं, जिसका उपकरण नहीं है उसको उपकरण दे रहे हैं, जिसका कृत्रिम अंग का ज़रूरत है उसको कृत्रिम अंग बनवाने के लिए जानकारी दे रहे हैं और उसको ले जाने का भी प्रयास करते हैं। किस्त 10 रुपया करके बचत करते हैं और बचत करके उससे जिसको जो भी ज़रूरत पड़ता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो उस बचत पैसा से उन लोग उनको सहयोग करते हैं। रोज़गार के लिए भी हम लोग बताते हैं, छोटे छोटे मतलब अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, जो
चाहे दुकान खोले, चाउमीन, चाट, झालमुड़ी बना के ये सब स्वरोजगार कर सके। वो सरकारी योजना जो भी आता है उसको हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को देखते हुए और भी हमारे साथ मतलब संगठन में जुड़ रहे हैं लोग। सामान्य लोगों की तरह हम लोग का भी वैल्यू रहे, समाज में बना रहे। तो वैसे हम लोग का भी दिव्यांग बच्चे भी हैं तो उन लोग का भी पढ़ाई हो और हम लोग जीवन यापन अच्छा से कर सकें, हंसते खेलते हुए सेवा कर पाएँ। हम संगठन के माध्यम से हम लोग दूसरे लोगों का भी सेवा कर पाएँ। पहले जागरूकता नहीं थे तो कुछ गांव का काम भी नहीं हो पा रहा था। गांव में जो लाइट भी नहीं था और अंधकार होने के कारण बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा था। जो यंत्र बिजली विभाग में उसमें भी दिए थे और उसमें कई आवेदन दिए थे। तो हम लोग बोल रहे थे सर, पहले भी बोले मैं कुछ माह के बाद होगा, 2 महीना 3 महीना ऐसी बताते थे। हमको लाइट की ज़रूरत है, हम लोग अपने पूरा लेबर हम लोग गांव से काम करेंगे। और खंबा लाए, फिर गड्ढा खोदे, फिर खंबा भी खुद कड़ा किए, तब जाके अपना जो लाइट वाला काम पूरा हुआ। अगर हम लोग नहीं करते पता नहीं आज तक वैसी रहता हो। जो पानी का समस्या भी है अभी भी, तभी महिला लोग भी निकले, कलेक्टर में गए, जन दर्शन में आवेदन दिए, तभी जाके कुछ दिन के बाद फिर वो भी काम स्वीकृत हुआ। रोड का भी काम हुआ, जो अपना लोहरा मुंडा में एक नरेगा हुआ और ये जो पदर शेगनी में जो नरेगा वाला जो रोड हुआ 900 मीटर वाला, इधर भी 900 मीटर वाला है। और पूरा गांव वालों के सहयोग से हो गया है। पहले हमारी पंचायत में इतने समूह नहीं थे, 10 या 12 समूह थे। फिर सभी दीदियों के घर में जाके बात करके एक जगह एक मोहल्ला के दीदी लोग को इकट्ठा करके समूह बनाते गए हर पारा में। और अभी के डेट में 26 समूह है। जैसे कि कोई समूह मध्याह्न भोजन चला रहे हैं, तो कोई आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चे हैं तो कोई हंडा खेला दे रहे हैं। तो ये बदलाव हुआ। फिर जैसे समूह में कम ब्याज में पैसा मिलता है, अगर दीदी को जरूरत है तो समूह से पैसा भी ले रही है। अपना घर में मदद भी हो रहा है। कोई मतलब कुछ हॉस्पिटल जैसे किसी का तबीयत खराब है, अपने बच्चे के लिए भी ले सकती है। कम ब्याज में पैसा मिल रहा है तो दीदी को डर नहीं है कि मैं वहाँ से ले सकती हूँ। पहले छोटे छोटे विवाद होने से डायरेक्ट जो है सभी लोग थाना जाने के लिए निर्भर थे, लेकिन लीगल सेल के माध्यम से जो है ग्राम निर्माण बहुत कुछ हम लोगों को सिखाने और समझाने का प्रयास किया। उसके लिए सलाह देने से दोनों पक्ष को बुलाकर आपस में उन लोगों को सलाह देते थे और फिर गांव में विशेष ग्राम सभा रखकर जो है उस झगड़ा या विवाद को जो है निपटारा हो जाता था। The tribal communities, we have been able to come out with very substantial kind of changes, creating the ownership in the minds of the tribal communities, and they working for their own change, engaging with the governance systems and becoming part of the governance processes, and also creating systems within the communities that there is such a lot of ownership, and this process is being always taken back to their own responsibility as subjects of change. सरवुंड का स्थिति, स्कूल जा रहा था तो उस समय से उसका पता नहीं हो कहाँ दर्द में बहुत जगह भाई दूध भी करवा देखे। भाई दूध में तो काम नहीं किए, लोकल डॉक्टर भी करके देखे वैसे। वो धर्मजयगढ़ रायगढ़ शिविर में ही 2-3 बार गए थे और शिविर में बोल दिए कि तुम 80% है, कुछ काज मिल जाएगा। आते जाते में देख लिए कि विकलांग इन लोग लिखवा दिए, तो इनके तरफ से 5000 मिला होगा। ये 1000 दिलवाए और खुद पत्थल गांव साथ ही साथ जाके सामान लाए। कैसे मदद किया आपका, ये पूछ रहा हूँ। इन लोग आना जाना मदद किया। हाँ, फोन उन करते रहते हैं।
फिर क्या पूछते हैं फोन करके, क्या बताते हैं, क्या सामान रखते हैं दुकान में? साबुन, सर्फ, तेल सब, महुआ, आलू, और क्या? प्याज, हल्दी, मसाला। अच्छा। और किसका खपत ज़्यादा होता है दुकान में? सब चीज़ का खपत होता है। अच्छा, क्या जल्दी बिकता है? मिठाई सब, मिक्सचर उच्चर। अच्छा, हाँ। मिक्सचर भी है? हाँ, छोटे छोटे बच्चे सब आते हैं, छोटे बड़े सब। हाँ, महिलाएं नहीं आती आप क्या? आते हैं महिला सब। पहले ऐसे बेकार का बैठा रहता था, अभी उसका कम से कम मजदूरी तो निकल रहा है, खाने पीने के लिए, साबुन गुड़ा को तरने, कपड़ा लत्ता के लिए और परिवार के लिए वहीं से खाना पीना चल रहा है, जो भी है वो। मेरे दोस्त लोग उस समय कुछ नहीं बोलते थे, उस समय कुछ करने के लिए नहीं सक रहे थे तो कहाँ से बोलेंगे। अभी सक रहे हैं तो बोलेंगे। अभी क्या बोलते हैं? अभी कोई बोलते हैं कि पैसा कौड़ी चलाओ बोलते हैं, तो पैसा कौड़ी में कहाँ से चलाऊंगा बोल रहा हूँ। तुम पैसा कौड़ी पा रहे हो, चलाओ बोलते हैं, कहाँ से चलाऊंगा मैं बताओ। Tarun has become the lead earner in the family, earning rupees 5,500 per month as profit. He is now confident and radiates a contented laughter, a laughter that we can also see in Sini's family. Sini Ugursandi has a limb disability, but it hardly stops her from finding hope. दूसरा बेटी जब 3 साल की थी उसी टाइम से मेरा दोनों पैर हमारा फेंका रहा है। पूरा इलाज किए, पूरा आसाम तक, उधर बंगाल तक गए थे, डॉक्टर से भी दिखाए तो कुछ बीमारी बताया ना। बाद में हम सर से बात किए तो सर से जान पहचान भी था, उन लोग का माध्यम से फिर मेरा ऑपरेशन हुआ है एक ही पैर। अभी तो एक ही पैर मेरा ठीक है और एक पैर थोड़ा फेंका रहे हैं, मतलब चलने का मैं अभी ठीक हैं। जब से समूह में SHG समूह में जुड़े तब से हमको मतलब दूसरों का साथ में बातचीत का मौका मिला, फिर उसी का साथ में जोड़ के हम मतलब उसी से हम ऋण लिए हैं, उसी से हम अभी दुकान चला रहे हैं। मेरा परिवार भी अच्छा चल रहा है, उसी से बच्चा लोगों को भी हम अच्छा स्कूल में पढ़ाते थे। पहले तो प्राइवेट में करते थे 3-4 साल, अभी मतलब सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा है। सब आशा के या में भी काम करते हैं। हमको कुछ मिले या नहीं मिला, गाँव वाला को हम अच्छा सेवा देंगे वही सोचते हैं से। माँ लोग जैसे गर्भवती महिला बच्चा हुआ उन लोगों का देख रेख ज़्यादा करते हैं। जैसे बुढ़ापा लोगों को मतलब जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को भी मतलब स्वास्थ्य मतलब अच्छा से रखेंगे बोल कोई सोचे हैं। दीदी लोग भी हम लोग को जैसे सितंबर से लोग मनीषा दीदी लोग बताई कि उसका मतलब उधर से भी जो मिला है उन लोग का ऐसे लाभ मिला है, उन लोग हम लोग उठाएँ, उन लोग से भी अच्छा है हम लोग, तो उन लोग को भी धन्यवाद कहते हैं कि उन लोग हम लोग को सपोर्ट बहुत किया है। SHG में जोड़ के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चा लोगों को आगे पढ़ा सकते हैं और साथ साथ में गांव का महिला लोगों को भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। Sini teaches us how to draw strength from the community and effect change in our personal and social lives. She gained identity and acceptance as a woman leader, was named Best Asha Worker, and received an award of excellence from Jharkhand's Honorable Chief Minister. While Sini found her ray of hope, Sobin Lakra found strength in creating livelihood on his farm. He was a migrant worker who returned during the COVID-19 crisis. सबको मेरी तरफ से जोहार। और मेरा नाम सबन लकड़ा है, ग्राम बानपुर की जटोली से। कोरोना महामारी की वजह से बहुत तकलीफ का एक बार सामना करना पड़ा। जब मैं केरला में था तो केरला में रहने से ठेकेदारी के अंदर मैं काम करता था। कभी पैसा देते थे, कभी नहीं देते थे। सहयोगी भाई लोग हैं, वही लोग भी हम लोगों के साथ में रह के बहुत सारे योजनाओं को विषय में विस्तार से जानकारी को दिया। और इस प्रकार से आप अगर गांव में भी रह के खेती, पशुपालन, जो हम लोगों का सहकारिता जिसे कहा जाता है, अगर मिला के किया जाए तो आप अच्छा उन्नति कर सकते हैं। किसान होने के नाते मैं यहाँ घर पे खेती भी करता हूँ और पशुपालन भी करता हूँ साथ साथ में मिल के। हाँ, 8 गो बकरी है और वो भी बढ़ रहे हैं। और उसके बाद में
60 किलो मछली निकाल चुका हूँ, बत्तख है और विशेष ज़्यादातर सुकर ही है। एक अच्छा अपने छोटा सा घर को भी बना पाया और मेरे पास अभी, पहले मैं साइकिल में जाके काम करता था, आज मेरे पास 2 चक्का भी है, आज मेरे पास मिट्टी का घर था पहले, आज मेरे पास अच्छा सा एक पक्का मकान है और मेरे पास जो ये है वो सब मैं इसी से करके आज मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का। पहले पशुपालन में कोई ध्यान नहीं करते थे और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ और भी आगे बढ़े लोग, और भी उन्नति पाए, और भी मैं सोचता हूँ कि और भी आदमी शिक्षित हो, जागरूक हो और भी काम करे, मेहनत करे। The different communities who are part of this program across these 2 states have had an experience of enhancing their own social and economic profiles through collectivization and also strengthening the Panchayati Raj system of governance. Self-reliance of the communities is a milestone for Gram Nirman. In many villages, the groups now run themselves. They feel so strengthened that they are engaging directly with government departments. The members raise their voices in Gram Sabha and support other community members to speak about issues that matter to them and community development. Gram Nirman program has been a signature program for Caritas India. So that why? Because we are able to see the change that is happening at the last mile. And we always appreciate and encourage the tribal communities and their leaders that they should be more anchored on their own traditional richness and tribal governance. This becomes a beautiful model of change narrative in our country today.